Almost 2.5 weeks back, I started showing some symptoms. On 8th of June, I decided to go and give my sample, and I was tested positive for COVID 19. Hello everyone, Assalamu alaikum. For those who are new to this channel, my name is Afan bin Usman. I usually make videos about traveling, food, vlogs, daily life, and lately I've also been making university guidance videos. Before I go on into this video, there are two very important things that I need to share with you guys. सबसे पहले तो there are a lot of people within our community who have a very hard time having a mental acceptability that they might have the virus. Bringing yourself to a point where you can acknowledge, understand that you have the virus is extremely important, because that is the only way you will follow the isolation protocol and all these precautions ताकि आपकी वजह से किसी और को ना लगे. And that is exactly what point of this entire video is. And secondly, I am the kind of person who takes a lot of care, a lot of precaution. I wear a mask every time I go out of the house. I sanitize myself after every 2 to 5 minutes, whether I've had an interaction with someone or not. These were just my habits, and I became such a germophobic, especially in these times, in the last few months. But still, I caught it, and I do not know how I got it at all. So the point is, इतना ज़्यादा एहतियात करने के बावजूद I still got it. You need to accept the facts here. Really, I think is a mental acceptability develop करना that you might have the virus and what you need to do in case you do have it. So this is why I'm making this video. In this video, what I will be discussing is my symptoms, how they progressed, और मुझे किस किस दिन roughly क्या हुआ, आइसोलेशन में मेरा टाइम कैसे गुजरा, व्हाट आई वाज डूइंग, जर्नल, थोड़ी सी टिप्स. मेडिकल रिलेटेड चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, बिकॉज आई एम अगेंस्ट द ओपिनियन के पीपल स्टार्ट सेल्फ मेडिकेशन, बिकॉज दैट कैन बी एक्सट्रीमली हार्मफुल. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कंसल्ट अ डॉक्टर प्रॉपरली. सो सबसे पहले तो ये कि मैं तकरीबन 1-2 दिन से ठंडा पानी पी रहा था. टैंग पी रहा था जो कि बहुत ठंडा था. मिल्क शेक पिया मैंने द अदर डे जो कि बहुत ठंडा था. सो 2-3 दिन से लगातार मैं ठंडी चीज़ें पी रहा था. सो आफ्टर 2-3 days like these, आई वोक अप एंड हैड अ लिटिल बिट ऑफ सोर थ्रोट. मैं कहा चलो क्यों ठंडा पानी पीना, उसकी वजह से होगा. बट साथ साथ में मेरे बुखार हल्का सा चढ़ना शुरू हो गया, और बॉडी एक जो थी ना वो स्पाइक अप हो रही थी. बॉडी एक इस पूरे टाइम पीरियड में वो समथिंग दैट वाज वेरी प्रोमिनेंट एंड वाज वेरी सिवियर थी. आई टुक पैनाडोल और पहला दिन गुजर गया. The next day was when I basically started to have a fever, a sore throat, proper wala, and then body aches got worse. तकरीबन 3 से 4 दिन के पीरियड में ये चीज़ें शुरू हुई और ख़त्म हुई. अपार्ट फ्रॉम सोर थ्रोट, जो मेरा गला ख़राब रहा है, दैट वाज अराउंड 7 to 9 days. मेरा गला ख़राब रहा है और उसे टाइम लगा ठीक होते होते. In this time frame, I started to isolate myself, and I was catering to the possibility that I might just have the virus. So मैं इस कमरे में जिसमें ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, मैं इसी में आके ज़्यादातर टाइम अपना स्पेंड करता था. एंड क्योंकि वो वीकेंड आ गया था, सो आई वाज़न्ट गोइंग टू ऑफिस. जब मेरा गला ठीक नहीं हुआ एंड वो संडे, आई थॉट इट वुड बी बेटर टू कंसल्ट अ डॉक्टर. आई डिड. आई टोल्ड माई सिम्टम्स, एंड माई डॉक्टर टोल्ड मी टू आइसोलेट माई सेल्फ कम्प्लीटली एंड इमीडिएटली. आई इन्फॉर्म्ड माई ऑफिस एंड दे सेड इट्स बेटर यू गेट योरसेल्फ tested, ताकि in case you are positive, तो the people who were around you can isolate and get tested as well. The next day I got myself tested, और एक दिन के बाद रिपोर्ट आई. I am basically living in Lahore as of now. Some of you might know it. And I'm living with my grandparents as of now. जब पॉजिटिव रिजल्ट आया तो मतलब जाहिर सी बात है, I had to take my family on board and we had to make decisions कि किसको आइसोलेट करना है, किस तरह करना है, and managing things. One thing that happened was, जिस दिन मैंने टेस्ट कराया उस दिन my grandmother started showing symptoms. She had a fever, body ache and a sore throat as well. We were waiting for my result. जैसे ही मेरा रिजल्ट आया, the next day we got her tested and it was negative. And by that time her symptoms had faded away, but still we followed the isolation protocol. क्योंकि मेरा in particularly पॉजिटिव आया हुआ था, so we were strictly following the isolation protocol for myself. कमरे के अंदर चीज़ें आ रही थी, कमरे से बाहर नहीं जा रही थी. I was not sending my clothes for washing. खाने के लिए चीज़ें जो थी वो usually disposable plates वगैरह में अंदर आ रही थी. But in case कोई interaction होना होता था, so I used to wear my mask and wash my hands properly before taking anything बाहर से. अल्हम्दुलिल्लाह से the symptoms I had were not very severe, mild थे.
गला बट मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब था. ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स अलहमदिल्ला से मुझे एज सच इतनी प्रोमिनेंट नहीं हुई, बट ये है कि आई यूज टू गेट टायर्ड. आई स्टिल डू गेट टायर्ड आफ्टर ऑलमोस्ट 20 days कि अगर मैं थोड़ा बहुत भी कोई काम करूँ. एज द डेज प्रोग्रेस्ड आई वॉज गेटिंग बेटर, बट अराउंड 10th-11th डे जाके फॉर अ पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट 4 to 5 days मेरी सेंस ऑफ स्मेल आहिस्ता आहिस्ता जाना शुरू हुई है, एंड देन इट केम बैक. बीच में मुझे फ्लू भी ऑन ऑफ रहा है इस पूरे टाइम पीरियड में. सेंस ऑफ स्मेल जब आपकी जाती है ना, इट्स वेरी एक्सट्रीमली वियर्ड. आई वॉज ट्राइंग टू स्मेल द परफ्यूम. मुझे उस दिन फ्लू नहीं था जिस दिन मैंने ट्राई किया था. आई कुडंट स्मेल द परफ्यूम, बट जो परफ्यूम के ड्रॉपलेट्स होते हैं दैट वेंट इनसाइड माई नॉस्ट्रल और मुझे जाके हिट किए. दैट्स हाउ आई रियलाइज के नहीं, सेंस ऑफ स्मेल बाकी में गई हुई है. बीच में वन डे आई ट्राई टू एक्सरसाइज, बट आई गॉट सो टायर्ड आफ्टर इट. आई डिडंट ट्राई इट अगेन. आफ्टर ऑलमोस्ट तकरीबन 10 to 12 days, whatever छोटी मोटी एक्टिविटी आई यूज टू डू, आई यूज टू गेट अ लॉट टायर्ड. मतलब मैं नहा के आता, आई यूज टू गेट टायर्ड. वन thing that I was trying to get hold of was an oximeter. I am honestly disappointed in this nation. It was a very painful experience for me to actually see that लोग ऐसी situation में भी they are trying their best to rob as many people as possible. An oximeter roughly costs for 1500 से 3000 के दरम्यान में. और आई ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ इट, और जहाँ पे भी मैं ट्राई करता या तो वो आउट ऑफ स्टॉक होता या वो ब्लैक में बिक रहा था. Guess the price. I was told the maximum price that could have been told. One guy was selling it to me for 21,000. एक चीज़ जो कि तकरीबन 2 से 3 हज़ार एट मैक्स होती है, आप उसे 21,000 की मुझे दे रहे हो. Although that guy claimed that he is an official distributor of a certain German brand, but I did look it up on some German websites, but वहाँ पे भी अजीब prices थी. So I couldn't really figure it out कि if he was telling the truth or not. But roughly लोग जो थे 7, 8, 9, 10 हज़ार इस तरह करके दे रहे थे. अच्छा, isolation में इंसान एक point पे आके इतना frustrate हो जाता है, and that was me. क्योंकि आपका एक तो physical interaction लोगों के साथ नहीं होता, you are only talking to people on phone. There is a certain limit to which you can use your laptop or your phone. तो बंदा ना naturally irritate होना शुरू हो जाता है. और तकरीबन 5-6 days down into the isolation, I used to get so frustrated and irritated with people who were even being my well-wishers. मतलब I used to get irritated by people who were calling or messaging me to ask if I was doing good. I felt irritated getting back to them. I'll tell you another example. I am the person who talks to my family almost on a very daily basis. I used to get so irritated कि मैं उनसे 30 seconds बात करने के बाद I was like, okay, मैं इस बात नहीं हो रही, या मैं irritate हो रहा हूँ. It was a very weird feeling. You're alone in this room and you're all by yourself. It's just a little bothersome. खैर, eventually with time I did overcome it and I realized it कि people were actually being concerned about me or being my well-wishers or praying for me, and I should try my best to keep that good spirit up. Achha, as for how I spend my time in isolation, I rested a lot. I was advised to not exert mentally and physically. I was having meals 3 times a day. मैं proper खाना खा रहा था, fruits वगैरह ले रहा था. I was resting a lot. मैं सुबह सोता था, शाम को भी सोता था, रात को भी सोता था. Like I was sleeping most of the time. I rested a lot. That is why I think I recovered fast, alhamdulillah से. To keep myself busy, I was engaging और doing activities जिसमें मेरा mind completely different set पे रहता. For example, I found a few different YouTube channels. मैंने एक course जो है CS वाला वो kind of शुरू किया. मैंने YouTube पे I found David Dobrik की videos. I didn't know he पहले existed, but that was something that completely took my mind off because his videos made me remember the times I used to spend with my friends. I used to play games phone पे जब भी मुझे लगता है कि I am getting tired या बहुत ज़्यादा time हो रहा है, so I used to stop. I was engaging in healthy conversations, especially शुरू में I was trying to avoid telling people that I was tested positive, especially those जो कि मेरे से close contact में नहीं रहे थे, in order to avoid that irritating feeling of being asked again and again. Apart from the medicines, खाने की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि advisable थी. For example, हल्दी वाला दूध, I had it straight for like 5-6 days हर रात को. अदरक का कावा with लौंग and दालचीनी, I guess वो उसका एक कावा होता था, वो I used to take it every day. Gargles or steam was something I was advised. Water intake was something important and I had to keep myself hydrated, so I was drinking water more than usual, which is a good thing वैसे भी, but it was something that was also advisable. A healthy diet, fruits, घर का खाना, सबसे importantly, this was something I strictly followed for
the entire isolation were 2 weeks. For a person like me who likes to have McDonald's every week or 2 weeks or after a certain time, and especially if you're isolated, तो things get a little bit difficult. तो हाँ, एंड पे आके मेरी बस हो गई थी. So after almost 14-16 days of the initial symptoms, I got myself tested on 20th of June. The next day the report आ गई and I was tested negative. Alhamdulillah se. I was advised to get myself tested again. So after 4 days on 23rd I got myself tested again and I was tested negative the second time. This was just to have a confirmation, primarily because I'm living with my grandparents, so my family felt it was important that I need to get it done. So जब initially मुझे symptoms show होना शुरू हुए थे, it was harder for most of the people I was talking to, and myself included, to cater to the possibility that I have it, although I was isolating. But getting yourself tested and then finding out you have it is, the thought of it is basically one of the most concerning things. It would have been a very difficult situation if my boss or if my office hadn't recommended me to get myself tested. I would have just been isolating, but since that test happened, चीज़ें काफ़ी क्लियर हो गई थी. Building up to that point, it was extremely hard. This is one of the pictures I took from the first test. एक तो उस दिन गर्मी भी लाहौर में बहुत थी, बट इट वॉज मोर सो द एंगजाइटी और एक मेंटल प्रेशर वगैरह था, दैट वाज आल्सो बिल्डिंग अप. रश भी उन दिनों बहुत ज़्यादा था, तो मुझे काफ़ी टाइम लगा था. अच्छा, कमिंग आउट ऑफ आइसोलेशन एक मेंटल एंगजाइटी होती है, दैट हैज स्टार्टेड टू फेड अवे अल्हम्दुलिल्लाह से, और एक नॉर्मल आहिस्ता आहिस्ता आई एम गेटिंग बैक विद द रूटीन, ऑल्दो आई एम स्टिल स्पेंडिंग टाइम इन दिस रूम, बट आई एम गोइंग आउट अल्हम्दुलिल्लाह से काफ़ी बेहतर. सो यू नेचुरली फील बेटर इंटरेक्टिंग विद पीपल in person rather than just calling them. But the thing is, the more we care about ourselves and for the people around us, the better it is. And it's not something that we can't do. If I can do it, I'm sure you can too. There's no big of a deal. Also, one important thing, these were my symptoms and these were very mild, as you can tell. But that is not the case with everyone. See, the thing is, this virus that affected me, if it gets transferred to someone else through me, chances are it may affect them very severely or very differently. सबसे बड़ा मसला यही होता है कि you don't know how it is going to affect other people, and secondly, if you have it, you don't know what symptoms you might have it, and the fear कि ये कितनी intensity पे जाके आपको hit करेंगे, that is what that builds up more. My friend Shane Haider, he is in Karachi and he also had the virus, and as he tells, उसके symptoms are very severe. So हर किसी के different किस्म के symptoms आ रहे हैं, but एक mental state positive होना, that is very important. Symptoms मेरे ख्याल में इन्फेक्शन के 2 दिन बाद स्टार्ट हो गए थे. और स्टार्ट इस तरह हुआ, एक हल्का सा पहले स्क्रैची थ्रोट था, और वो 1 दिन के अंदर फीवर में कन्वर्ट हुआ. मैं जब घर आया तो मैं सो गया. ओवरऑल बस मुझे लग रहा था कि मुझे बहुत ज्यादा फीवर चढ़ रहा है, लेकिन मुझे फीवर शो नहीं हो रहा था किसी थर्मामीटर. क्योंकि जब उठा ना तो मेरे से हिला नहीं जा रहा, और मुझे लग रही ठंड, पागलों वाली ठंड लगी. 2 पैराडोल खाने के 2 घंटे के बाद 101 हो गया. मेरी तबीयत बहुत ऑफ थी, मतलब इस तरह का था कि मेरे पूरे के पूरे यहाँ तक हल्के पड़ गए थे, बिल्कुल खत्म हुआ था. मेरे से कुछ किया नहीं आ रहा था, मेरे से मतलब मोबाइल तक नहीं संभाल जा रहा था. मैं सो गया, मैं सो के उठा, सुबह मुझे बुखार 100 की. बॉडी एक बहुत सिवियर थी बेसिकली. हाँ, बॉडी एक मतलब सिवियर बॉडी है. 2 से 3 दिन मेरा यही वाला हाल रहा, 102, 101, 103 रहा. उसके बाद टेम्परेचर गायब हो गया पैराडोल खाने के बाद, लेकिन पूरी की पूरी बॉडी में दर्द रहा, और खास तौर पे मेरी जो रिब्स है ना, बेसिकली लंग्स वाली जगह, उस जगह पे बकायदा दर्द होना शुरू हो गया, और लग रहा है कि वो बंदा बैठा हुआ है. मुझे इस पूरे प्रोसेस के अंदर 3 दफा ER जाना पड़ा, लेकिन तीनों दफा मुझे डॉक्टर्स ने बोला कि तुम्हारा साइकोलॉजिकल है, असल में तुम्हें सांस आ रहा है. अब आने को मुझे तू बता, मैं तेरे से एक ऑफिस की बात कर रहा हूँ, मतलब तू मेरा बॉस है, मैं तेरे से ऑफिस की बात कर रहा हूँ. बात करते मैं कहूँगा मेरे से बात नहीं हो रही है, अल्लाह हाफिज़. तो मुझे बताओ, उसने मेरे दिमाग में ये था कि मुझे कोरोना हो नहीं, मैं तो फोकस मोड अपने काम पे लगा दूं. मुझे एकदम से सांस आना बंद हो गया. अराउंड 5 डेज जब गुजर गए ना सीवियर सिम्टम्स के, एक चीज रही, सांस आ नहीं रहा था. मतलब सांस ना आने का मतलब पता क्या होता है? ये मेरे सांस लिए ना, एक आपको फीलिंग आती है कि आपकी लंग्स में हवा गई है, और एक आपको ओवरऑल जनरल काम मिलती है, जिसकी वजह डीप ब्रेथ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ना. वो मिल ही नहीं रही थी, मतलब सांस ही नहीं लिया मैंने. इस तरह होता है ना, कभी कभी आप ऊंचाइयों पे जाते हो, जब आप हाइकिंग कर रहे होते हो, उस टाइम पे आप सांस ज्यादा ले रहे होते हो कि कुछ तो अंदर जाए, वो वाला सीन. अराउंड द 6th डे स्मेल टेस्ट गायब, ऐसी गायब कि मैं हरी मिर्चें खा रहा था, मैं जबान पे विक्स लगा रहा था, मुझे कुछ फील नहीं हो रहा था. मैंने इस जगह पे बकायदा परफ्यूम मारा अपनी नाक के अंदर, मुझे कोई स्मेल नहीं आई. स्मेल तो चलो आपकी नॉर्मली भी गायब हो जाती है, टेस्ट वाली चीज बड़ी डरावनी चीज थी.
कि मैं कुछ भी खा सकता था, मैं कोई चीज मुंह में डाल लूं मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा था। गला सही हो गया, बुखार सही हो गया, बॉडी एक्स भी सही हो गए। अब दो चीजें रह गई, साइकोलॉजिकल ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स और नंबर पे टेस्ट और स्मेल। टेस्ट और स्मेल भी वापस आना शुरू हो गई। जैसे ही टेस्ट और स्मेल थोड़ी सी वापस आई, मैंने टेस्ट कराया, मेरा नेगेटिव हो गया। ब्रीदिंग का अभी भी थोड़ा थोड़ा मसला हो। ब्रीदिंग का मसला मेरा टेस्ट नेगेटिव आने के कोई 3 दिन बाद खत्म हुआ। कि मैंने जब सांस लिया, जैसे मैंने सांस लिया तेरे सामने ना, तो मुझे सुकून मिला है। ये चीज मुझे कोई लास्ट 3 डेज के अंदर हुई है। फटीग अभी तक है। अभी मैंने आपसे बात कर ली है ना, 10 मिनट बात कर ली है, अब मैं थक जाओगे। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मैं थक जाऊंगा। अब मैं कोई 1 घंटा बैठा रहूंगा, हल्का हल्का मोबाइल इस्तेमाल करूंगा, फिर मैं कोई और एक्टिविटी करूंगा। तो सेम केस यही है। मैं उस दिन टेस्ट करवाने गया हूँ और वापस आके मेरा बुरा हाल था। मैं नहाने जाऊँ, नहा के बाहर निकलूँ तो मुझे थोड़ी देर के लिए बैठना पड़ता है, थोड़ा बंदा सेटल हो जाए फिर कोई काम करे। एक जर्नली ये है कि फटीग और सांस चढ़ना और बंदा एक्सर्टेड फील करता है, इवन छोटे मुंडेन किस्म के काम करे तब भी। नहीं, जेन्युइन बात की है यार। The one thing that I knew what this was, it was not a common flu. I have never felt anything like this. मुझे नहीं होती मेरी तक। मैं इतना मतलब मैं बेशक पतला सा हूँ और लोग मुझे कमजोर कहते हैं, बट आई एम वेरी एक्टिव। मैं दिन के अंदर 14 घंटे ऑफिस में काम करता हूँ, मुझे कोई थकान नहीं है। मैं खत्म हो गया था इस चीज से भाई। मेरी अब काफ़ी लोगों से बात हो रही थी। फॉर एग्जांपल फयाज तुम्हारे साथ था और फयाज कह रहा है कि उसे सिर्फ 2 दिन बुखार रहा है या 1 दिन बुखार रहा है, उसके सिम्टम्स भी बहुत माइल्ड थे। काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनके माइल्ड सिम्टम्स होते हैं और गुजर जाते हैं, जिस तरह मेरा भी था। मेरे भी कुछ हद तक माइल्ड सिम्टम्स थे, बट कुछ हैं उनके बहुत ही सिवियर हैं। सो मतलब यू नेवर नो कि किसको माइल्ड सिम्टम होने हैं, किसको सिवियर होने हैं। थोड़ी सी इनपुट जो मेरी है ना, उसमें मेरे ख्याल में पता है कि वायरल लोड का बड़ा मसला है। क्योंकि मुझे पता था 4 ऐसे लोग जिनको कोरोना हुआ था, जिनसे मेरा इंटरेक्शन हो चुका था किसी भी वजह से। बहुत 4 लोगों से एटलीस्ट हो चुका था मेरा कांटेक्ट बाय द टाइम मेरे डिटेक्ट हुए। तो मेरे ख्याल में मेरे में वायरल लोड भी तो ज्यादा था ना। हमारी जो मेडिकल की फील्ड में सारे जो अपने डॉक्टर्स मर रहे हैं, वो क्यों मर रहे हैं? क्योंकि उनका एक्सपोजर बहुत आता है। एक्सपोजर एक बहुत बड़ा फैक्टर। मेरा तो ये था कि आई कुडंट आइडेंटिफाई इनिशियली कि किधर से आया है, बिकॉज इट इज मेरा इंटरेक्शन बहुत ही कम था, और अगर लोगों के साथ था भी तो एक डिस्टेंस वगैरह पे था, और आई वाज टेकिंग प्रिकॉशन पूरी, मतलब कि मास्क वगैरह पहना हुआ है, सैनिटाइज कर रहा हूँ। वर यू डूइंग ऑल ऑफ दैट एज वेल? इसलिए मुझे ऑफिस से निकाल देंगे अगर मैंने मास्क नहीं पहना हुआ, अगर मैं 6 फीट सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। लेकिन होता ये नहीं है ना यार। पता है क्या होता है, आप सारी प्रिकॉशंस भी ले लो ना, एक बंदा जिसको कोरोना जो पॉजिटिव है उसको नहीं पता वो पॉजिटिव है, तो वो ऑब्वियसली चीजों को हाथ भी लगाता है, वो कप्स इस्तेमाल करता है। जनरल बहुत सी सर्विसेज होती है, कोई मशीन को ऑपरेट किया जाता है, कुछ भी हो। मैं तो सीधी बात यही हुआ है, मेरे ख्याल में इस तरह मुझे लगा मजाक के अलावा। कॉन्टैक्ट एरिया का नहीं पता होता, लगातार सैनिटाइज नहीं कर सकते। तुमने उसको हाथ लगाया, उसने उसको हाथ लगाया, तुमने मुंह पे हाथ लगाया, तुम्हें कोरोना हो गया। वन एडवाइस फॉर एवरीवन, ये जो तुम देख रहे हो ना, कलौंजी खाओ, विटामिन लो, ये करो, सर्बेक्सिल लो, ये हमारे लिए नहीं है जिसको कोरोना हो गया, ये तुम्हारे लिए है। मुझे कोरोना हो गया ना, उसके बाद मैं जो करूँ ना, चलो वो एक है, जिसे कहते हैं इलाज हो रहा है मेरा। इस टाइम में ये चीज जरूरत पता है किसको है? तुम लोगों को। क्योंकि होना, देखो लोग मुझे कहते हैं मैं पेसिमिस्ट हूँ। मैंने घर वालों को पहले दिन से बोला था, मैंने कहा सबको होना है और सबको होगा। सीधी सी बात है, कोई नहीं बचता। जितनी भी तुम उसको सॉफ्ट प्ले कर लो ना, मैं सीधी सी बात है यार, स्टैटिस्टिकली नहीं बच सकता, लॉजिक नहीं बनती यार। तो व्हाट यू कैन डू इज कि तुम अपनी इम्यूनिटी इस टाइम पे अच्छी करो। कोरोना से 1 दिन पहले मेरे पीएनजी के सारे टेस्ट थे, मेडिकल टेस्ट। मेरे प्लेटलेट्स आए 250, ये वेरी नॉर्मल। 2 दिन बाद जिस दिन मेरी तबीयत खराब हुई तो मुझे हॉस्पिटलाइज किया गया। मैं हॉस्पिटल में गया, वहां उन्होंने मेरा ब्लड टेस्ट लिया 3 दिन बाद, सॉरी, और मेरे प्लेटलेट्स आए 125। 50% प्लेटलेट्स गायब हो गए थे, जबकि ये वायरस प्लेटलेट्स को अफेक्ट भी नहीं करता। बस बात क्या थी कि मेरी इम्यूनिटी इतनी अच्छी नहीं थी, मेरी बेसिकली मेरा इम्यून सिस्टम लड़ रहा था ना, और मेरी चीजें ड्रॉप होती जा रही। तो डॉक्टर्स ने कहा कि आपके अंदर जिंक की कमी थी। तो मैं वो कह रहा हूँ कि इस टाइम पे जो जिनको नहीं हुआ ना, वो करे ये बंदा, उनके लिए इम्पोर्टेंट है ये, हमारे लिए नहीं इम्पोर्टेंट। हमें तो हो चुका है यार। तुझे आइडेंटिफाई हो गया कि तुझे जिंक की कमी थी, यू लोडेड योरसेल्फ विद जिंक। जर्नली भी हमारी डाइट वगैरह ऐसी होगी कि हम जिंक, आयरन, कैल्शियम और विटामिन, ये नॉर्मल ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारी डाइट इतनी इनरिच्ड नहीं होती। तो ये तो सारी रिकमेंडेशन और डाइट वगैरह अच्छी करनी है, सारी चीज़ें, सप्लीमेंट्स लेने, दिस इज़ फॉर पीपल हु डोंट हैव एनी अदर इशूज। बट फॉर पीपल हु हैव अदर डिजीज लाइक डायबिटीज वगैरह, उनके लिए दे हैव टू बी वेरी केयरफुल, और डॉक्टर से एडवाइस लेने के बाद ही लेना। सेल्फ मेडिकेशन, यू कैन नॉट स्टार्ट टेकिंग मेडिसिन्स। आई एम जस्ट सेइंग कि सीधी बात है, मसला पता है क्या पाकिस्तानी अवाम का, वी डू नॉट हैव मेडिकल चेकअप्स। हमारे तो मेडिकल चेकअप्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, हमें पता ही नहीं होता हमारे साथ मसला क्या है। हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि अपना सर जमीन के अंदर डाल लेते हैं और कहते हैं एवरीथिंग इज फाइन।
तो कहते हैं डॉक्टर के जाएंगे तो कोई गलत चीज निकल आएगी। बेटा तुम्हारे अंदर गलत चीज है, डॉक्टर नहीं निकालता है, डॉक्टर पैदा नहीं करता उसको। मैं बता रहा हूँ कि प्रिवेंशन इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि नॉर्मली मेरी अम्मा जी को पोलन के अंदर हालत खराब हो जाती थी, लेकिन उनने वो मेडिसिन लेना शुरू की, एक कोर्स होता है वो लेना शुरू किया बिफोर द सीजन, और जब सीजन आया तो उस चीज का इफेक्ट इतना हुआ ही नहीं। प्रिवेंशन ज़रूरी है, बट देखो ये आइडेंटिफाई भी डॉक्टर ने किया होगा और बताया भी डॉक्टर ने होगा कि कौन सी मेडिसिन लेनी है, ताकि आप इन एडवांस अपनी बॉडी को इक्विप कर लें। अब मैं वैसे जनरली देख रहा था, काफ़ी जो ग्रुप्स वगैरह फेसबुक वगैरह पे भी, व्हाट्सएप मैसेजेस वगैरह भी चल रहे हैं, एक सर्टन प्रिस्क्रिप्शन चल रही है। मेरे दोस्त वगैरह हैं डॉक्टर्स वगैरह, तो उनसे मैंने डिस्कस किया, एंड देयर वर सम मेडिसिन उनमें से जो कि प्रॉपर स्टीरॉइड्स हैं विच हैव हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन यू, और ये दीज आर फॉर पीपल हु आर नॉर्मल, जिनको कोई और डिजीज़ नहीं है। तो मतलब दिस इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट कि आप डॉक्टर से जाके मिलो, डिस्कस करो, या इवन इफ़ यू कांट गो, यू जस्ट टॉक टू देम और टेल देम अबाउट पूरी हिस्ट्री वगैरह अपनी बताओ, जिस तरह भी है। एग्जैक्टली यार, इस तरह की आप चीजों पे एक्सपेरिमेंट ना करो जब आपको इस टाइम पे अगर वर्ल्ड ऑफ साइंस को नहीं पता कि देखो मतलब दो तरह की चीजें हैं। देखो, एक है कि कोरोना खत्म करना, ठीक है, और एक है अपने आप को मजबूत करना, सही है। ये जो चीजें हैं ना, जो चीजें हार्मफुल बातें हो रही हैं सारी, जिनके मैं बहुत ज्यादा खिलाफ हूँ, सारी आजकल दवाइयां जो शॉर्ट हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर, ये सारी नॉन एफडीए अप्रूव्ड, बिल्कुल कोई अप्रूवल नहीं मिला हुआ कहीं से भी। बस वो कह रहे हैं कि एक बंदे को सही हो गया कि एक दिन लेट से शानदार कोरोना हुआ, मैंने वो दवाई खाई, मेरे ऐसी सिम्टम्स खत्म हो जाने थे, मुझे लगा इस दवाई से खत्म हो गए, मैंने पोस्ट मारी, 100 लोग इस्तेमाल करना शुरू हो गए और 3 मर गए मेरी वजह से। ये बहुत गलत है। फिर आती है कि जाहिर सी बात है, डोंट टेक एनी मेडिसिन, बट लाइक गेट योर इनटेक। ये विटामिन सी वगैरह और ये सारी चीजें जो आपने पूरी करनी है, वो तो आपने पूरी करनी है ना। मैं तुम्हें एग्जांपल लेता हूँ, इस टाइम पे विटामिन उसकी आपके विटामिन डी की, वो आपको मिलता है सूरज से मिलता है। आजकल हर बंदा घर में बैठा हुआ है, कहाँ से मिल रहा है भाई तुम्हें? इसीलिए आपको अपने डॉक्टर के पास जाके अपनी पूरी स्टेट बतानी है कि आपका एक्टिविटीज क्या है, उस लिहाज से वो आपको रेकमेंड करेगा। मैंने अपना सब कुछ बताया था, उन लोगों ने मुझे ये रिकमेंड कर दिया, उन्होंने मुझे 3 सप्लीमेंट्स रिकमेंड किए थे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ वेरी पॉजिटिव माइंडसेट इन ऑल ऑफ दिस टाइम फ्रेम, बिकॉज अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव होगा और हेल्दी होगा, ओनली देन यू कैन रिकवर फास्टर। जिस दिन तक मेरा रिजल्ट नहीं आया हुआ था, माई मेंटल स्टेट वॉज वेरी नेगेटिव, आई वॉजंट फीलिंग बेटर एट ऑल, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई वॉज फीलिंग वर्स देन आई शुड हैव, just because मैं उस चीज़ को cater ही नहीं कर रहा था, I was feeling very bad. But as soon as I accepted the fact कि यार अच्छा ठीक है मुझे है, but एक मुझे mentally अच्छी state में होना है, ताकि not I can only cope up with the mental stress but physical stress and the effects the virus has as well. So that was very important for me, and what I did to achieve that mental state was कि मैं ऐसी activities में अपने आप को engage कर रहा था जो कि मेरा mind इस चीज़ से completely हटा रहा था। For example, I started watching David Dobrik videos on YouTube, and that was a complete distraction for me. So I personally believe psychologically it also has an effect, but अगर आपकी mental state और साइकोलॉजिकली आप पॉजिटिव सोच रहे होंगे या एक पॉजिटिव स्टेट में होंगे, तो इट वुड बी ईजियर फॉर यू टू ओवरकम इट। अच्छा, गेटिंग टेस्टेड वाला फेज़ पहले तो बहुत मुश्किल था कि गो एंड गेट माई सेल्फ टेस्टेड, प्लस जब आपका टेस्ट हो रहा होता है वैसे ही होश उड़े होते हैं। जो नेजल स्वैब होते हैं, वंस दे पुट इट इनसाइड योर नॉस्ट्रल, दे इट गोज सो डीप, 14 तबक आपके रोशन हो जाते हैं। इट्स नॉट पेनफुल बट इट इज़ वेरी वियर्ड एंड यू शिवर। मेरा पहली बार हुआ तो उन्हें एक नॉस्ट्रल में डाला, व्हेन इट टुक इट, इट्स लाइक putting something deep into your nostril, spinning it and then taking it out, and I was like चलो शुक्र है निकाल दिया, but he put it back in the other nostril again. Uffallah, it was, मैं literally कांप उठा था। The second time getting tested was I kind of knew what was going to happen, I was okay, and the third time was like रट गया था ना अब क्या होने वाला है, तो I even tried to record it, and this was how it feels like to get tested. You can actually see कि एक बंदा वाकई में कांप उठता है। This was it from my side. Thank you very much for watching this video. If this video seemed helpful to you, or you think it might be helpful for someone else, do share it to other people. Take precaution, take care. One very important thing I would say again कि medication और दवाइयाँ जो आप ले रहे हैं, it is very important कि आप एक डॉक्टर से कंसल्ट करके लें।
खुद से सेल्फ मेडिकेशन ना शुरू करें. देयर आर लॉट ऑफ मेडिसिन्स व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह में जो फैल रही है. दीज मेडिसिन्स आर नॉट फॉर एवरीवन, स्पेशली फॉर पीपल हु हैव अदर डिजीजेस लाइक हार्ट डिजीज, डायबिटीज़, स्टफ लाइक दैट. अपार्ट फ्रॉम दैट, टेक हेल्दी फूड्स. हाँ, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सना मक्खी बहुत ज़्यादा फैली हुई है कि लेनी चाहिए. सना मक्खी यू ओनली हैव टू टेक इट वंस, बिकॉज अगर आप एक बार से ज़्यादा लेंगे आपका पेट ख़राब हो जाएगा. इसका साइड इफ़ेक्ट ये भी है. So before doing anything that you normally don't or haven't done before, please consult someone who has done it. Thank you very much for watching this video. If you think this video might be able to help someone else out, make sure to share it with them. If you have any questions, please drop them down in the comments below. I will try to get back to them as soon as I can. Alhamdulillah, as of now I feel better, but I do get fatigued. I do get tired थोड़ा सा जल्दी than usual. That being said, thank you very much.